Assalamu alaikum. My name is Dr. Sama Shfaq, and in this lecture I am going to discuss about cholesteatoma. Now, in this topic we are going to discuss about what is the definition, what is middle ear cleft, misnomer. Actually, cholesteatoma is a misnomer. What is the structure of cholesteatoma? What is classification of cholesteatoma? What are the complications? What is the most important complication associated with cholesteatoma? And end the lecture with treatment of cholesteatoma. So, what is definition of cholesteatoma? Cholesteatoma means presence of skin at abnormal place. सो इसका मतलब क्या है कि स्किन की एपिथेलियल लाइनिंग है जो कि स्क्वेमस केराटिनाइजिंग एपिथेलियम, तो अगर वो किसी और जगह पे प्रेजेंट होगी तो उसको हम कोलेस्टियोटोमा कहते हैं। ठीक है, मतलब स्किन के अलावा कहीं और प्रेजेंट है, लाइक ऐसी जगह पे प्रेजेंट है जहाँ पे उसको प्रेजेंट नहीं होना चाहिए था। तो मतलब प्रेजेंस ऑफ स्किन एट एबनॉर्मल प्लेस, जहाँ उसको नहीं होना चाहिए था वहाँ पे है, एबनॉर्मल या रॉन्ग प्लेस। सो व्हाट इज़ मिडल ईयर क्लेफ्ट? अगर हम यहाँ पे मिडल ईयर क्लेफ्ट की स्कीमेटिक डायग्राम बनाता हूँ मैं। This is just a schematic diagram of middle ear cleft. This is the eustachian tube. This is the middle ear cavity. Middle ear cavity. This is the tympanic membrane. And this is the mastoid antrum. Mastoid antrum in which there are mastoid. These are the mastoid air cells. So this is the eustachian tube. This is the tympanic cavity, and this is the tympanic membrane. This is the auditus. This is the mastoid antrum, and these are the mastoid air cells. तो अब इसमें होता क्या है कि इसका जो इसका जो टिम्पैनिक मेम्ब्रेन मिडल ईयर कैविटी का वो पार्ट जो कि टिम्पैनिक मेम्ब्रेन से ऊपर की तरफ होता है उसे हम एटिक कहते हैं या एपिटिम्पैनम। ठीक है, तो इसको हम कहते हैं एटिक। अब एंटीरियर पार्ट जो है, एंटीरियर इंफीरियर पार्ट जो ये पार्ट है, इसका ये पार्ट जो है, इसके एपिथेलियल लाइनिंग जो है वो क्या होती है? इट इज़ सिलिएटेड कोलमनर एपिथेलियम। मतलब जो इसका एंटीरियर इंफीरियर पार्ट है यहाँ पे होती है सिलिएटेड कोलमनर एपिथेलियम, जो पोस्टीरियर पार्ट है उधर होती है क्यूबॉइडल एपिथेलियम, और जो एटिक पार्ट है उधर पेवमेंट लाइक, मतलब जिस तरह पेवमेंट बिल्कुल फ्लैट सेल्स होते हैं। ठीक है, तो एंटीरियर पार्ट कंटेनिंग सिलिएटेड कोलमनर, पोस्टीरियर पार्ट कंटेनिंग क्यूबॉइडल, और एटिक में पेवमेंट लाइक या फ्लैट सेल्स होते हैं। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे अब 3 टाइप के एपिथेलियम की बात की है, लेकिन इसमें हमने स्क्वेमस कैरेटिनाइजिंग एपिथेलियम की बिल्कुल बात नहीं की। मतलब स्क्वेमस कैरेटिनाइजिंग एपिथेलियम इज नॉट प्रेजेंट इन द मिडिल ईयर क्लेफ्ट नॉर्मली। सो इफ squamous keratinizing epithelium is present in the middle ear, which is the abnormal place or wrong place for this type of epithelium, this will be called as cholesteatoma. So this is the middle ear cleft, and these are the epithelial lining of middle ear cleft. And now why it is called a misnomer? Now you can see that oma mean a benign tissue, a benign growth, and cholestia matlab related to cholesterol. But you can see that cholesteatoma has no association with cholesterol, and it is not a benign growth. It is just a skin present at wrong place. Now what is the structure of cholesteatoma? तो हिस्टोपैथोलॉजी की जाती है जब इसकी, तो उसका स्ट्रक्चर में क्या क्या हमें मिलता है? नंबर 1, इट कंसिस्ट ऑफ मैट्रिक्स पोर्शन होता है। मैट्रिक्स ऑफ द कोलेस्टियोटोमा कंसिस्ट ऑफ एपिथेलियम विच लाइज ओवर द फाइब्रस स्ट्रोमा। ठीक है, तो मैट्रिक्स मेड अप ऑफ केराटिनाइजिंग स्क्वेमस एपिथेलियम रेस्टिंग ऑन अ स्ट्रोमा या फाइब्रस स्ट्रोमा। ठीक है, तो मैट्रिक्स में कौन सी एपिथेलियम होती है, और वो एपिथेलियम कौन सी है? केराटिनाइजिंग squamous epithelium. So this is the keratinizing squamous epithelium which lies on over the fibrous stroma, and the other thing is the keratin. So this is the structure of cholesteatoma, that
matrix which is comprising of the epithelium lying over the fibrous stroma, and wherever the keratinizing squamous epithelium is present it continuously produce keratin. अब क्योंकि ये एक पॉकेट टाइप से बन जाती है, ठीक है, ये पॉकेट टाइप है, कोलेस्टेटोमा एक पॉकेट टाइप है, तो ये कंटिन्यूसली जब कैराटिन प्रोड्यूस कर रही होती है तो उस वजह से क्या होता है कि वो जो कैराटिन है ना वो कंटिन्यूसली एक्यूमुलेट होती रहती है इन दैट पॉकेट, और उस वजह से मतलब वो कैराटिन जो है वो उस पॉकेट में एक्यूमुलेट होती रहती है. सो दिस इज द कैराटिन. नंबर वन कंपोनेंट इज द मैट्रिक्स एंड नंबर टू इज द कैराटिन डेब्रिस, क्योंकि ये एक पॉकेट है और पॉकेट में कैराटिन कंटिन्यूसली एक्यूमुलेट हुई जा रही है और वो प्रोड्यूस होती है बाय द कैराटिनाइजिंग स्क्वेमस एपिथेलियम. Now after structure we will discuss about the classification of cholesteatoma. So classification of cholesteatoma. Now cholesteatoma is divided into two classes. Number one, it is congenital, and number two, acquired. Now acquired is further divided into primary acquired and secondary acquired. So these are the classification points, that congenital or acquired, and acquired is further divided into primary and secondary acquired. Now what is congenitally acquired? Congenital acquired cholesteatoma occurs when there is presence of primordial germ cell in the middle ear cleft. अब इस बात का क्या मतलब है कि हमारी जो बॉडी है उसमें 3 जर्म लेयर्स होते हैं, मतलब ड्यूरिंग एम्ब्रियोजेनेसिस देयर आर 3 जर्म लेयर्स, और वहाँ से जर्म सेल्स निकलते हैं, माइग्रेट करते हैं और बाद में डिफ्रेंशिएट होकर वेरियस बॉडी स्ट्रक्चर्स बनाते हैं. अब अगर कोई जर्म सेल्स वहाँ पे माइग्रेट कर गया है मिडल ईयर क्लेफ्ट में और वहाँ पे उसने डिफ्रेंशिएट नहीं हुआ, ठीक है, अब वो डिफ्रेंशिएट होके उसने मिडल ईयर म्यूकोजा के एपिथेलियम नहीं बनाई, लेकिन लेटर मतलब लाइक बर्थ के टाइम पे, ठीक है, उसने क्या किया, दीज जर्म सेल डिफ्रेंशिएट इनटू केराटिनाइजिंग स्क्वेमस एपिथेलियम, एंड प्रेजेंस ऑफ केराटिनाइजिंग स्क्वेमस एपिथेलियम will leads to the formation of cholesteatoma. So congenital due to presence of primordial germ cells in the middle ear cleft. Now what is primary acquired and secondary acquired? First we will discuss about primary acquired. Now you know that जब भी हम वर्ड यूज़ करते हैं प्राइमरी, इसका मतलब होता है कि कोई भी चीज़ अपेयर हो रही है इन द एब्सेंस ऑफ सम अदर अंडरलाइंग डिजीज़, और जब भी हम वर्ड यूज़ करते हैं सेकेंडरी, इसका मतलब क्या होता है, सम डिजीज़ प्रोसेस अकरिंग सेकेंडरी टू सम अदर डिजीज़, ठीक है. मतलब प्राइमरी क्या है कि ईयर में कोई और इन्फेक्शन या कोई और पैथोलॉजी नहीं थी, उस कंडीशन में कोलेस्टियाटोमा बन रहा है, तो ये होगा प्राइमरी एक्वायर्ड कोलेस्टियाटोमा. तो इसके लिए मल्टीपल थ्योरीज हैं, तो यहाँ पे हम देखते हैं कौन कौन सी कॉमन थ्योरीज यूज होती हैं. नंबर वन इज इन्वेजिनेशन ऑफ पार्स फ्लैसिडा. नंबर टू इज hyperplasia of basal epithelial cells. And third is squamous cell metaplasia. मतलब ईयर में और कोई ऐसी पैथोलॉजी नहीं है लेकिन फिर भी कोलेस्टियाटोमा बन रहा है, तो वो क्या होगा, प्राइमरी. अब इन्वेजिनेशन ऑफ पार्स फ्लैसिडा का क्या मतलब है कि जस्ट मैं दिस इज द extrusion tube. अब होता है दिस इज द मिडल ईयर कैविटी एंड दिस इज द ऑडिटरी मेटस, एंड फ्रॉम द एंटीरियर वॉल क्या निकलते हैं, एक्सट्रूशन ट्यूब. अब क्या होता है इन्वेजिनेशन ऑफ पार्स फ्लैसिडा में, क्या होता है कि जो एक्सट्रूशन ट्यूब है उसकी ब्लॉकेज हो जाती है. व्हेन देयर इज ब्लॉकेज ऑफ एक्सट्रूशन ट्यूब
द एयर दैट इज़ प्रेजेंट, क्योंकि अब ये ब्लॉक हो गया, मतलब कोई भी पैथोलॉजी हो सकती है, वो हम किसी और वीडियो में डिस्कस करेंगे। किसी भी वजह से स्टेशन ट्यूब ब्लॉक हो गया, उसकी वजह से क्या होगा कि यहाँ से अब जो एयर है उसकी मतलब एरेशन ऑफ द मिडल ईयर जो है वो ब्लॉक हो चुका है। अब जब एरेशन ब्लॉक हो चुकी है उसकी वजह से क्या होगा, जो कि एयर पहले से प्रेजेंट थी यहाँ पे वो डिजॉल्व हो जाती है। द एयर प्रेजेंट इन द मिडल ईयर इज डिजॉल्व्ड। अब उसकी वजह से क्या होगा, यहाँ पे एक नेगेटिव प्रेशर क्रिएट हो जाता है। ठीक है, यहाँ पे एक नेगेटिव प्रेशर क्रिएट हो गया और बाहर जो है वो रिलेटिवली पॉजिटिव प्रेशर है। अब इस वजह से क्या होगा, यहाँ पे देर विल बी रिट्रैक्शन ऑफ द मिडल रिट्रैक्शन ऑफ द टिम्पैनिक मेम्ब्रेन। अब क्योंकि जो पार्स फ्लैसिडा होता है वो फ्लैसिड पोर्शन है, मतलब वो फ्लेक्सिबल पोर्शन है, थिन पोर्शन है, और वहाँ पे कोई बोनी अटैचमेंट नहीं है, तो उसकी रिट्रैक्शन होना काफ़ी ईजी है एज़ कम्पेयर टू द पार्स टेंसा। और वो पोर्शन जो पार्स फ्लैसिड है वो पोर्शन कहाँ पे प्रेजेंट होता है, एटिक पोर्शन ऑफ द टिम्पैनिक मिडल ईयर कैविटी। तो क्या होगा कि यहाँ पे रिट्रैक्शन पॉकेट बनेगी। अब आप खुद देखो कि नॉर्मली अगर हम टिम्पैनिक मेम्ब्रेन की वॉल देखें तो आउटर मोस्ट होती है स्क्वेमस स्क्वेमस एपिथेलियम, मिडल होती है फाइब्रस लेयर, एंड द इनर मोस्ट इज अ म्यूकोजल लेयर। तो जब इसकी रिट्रैक्शन होगी, मतलब ये मिडल ईयर कैविटी है और ये स्टेशन ट्यूब है, जब इसकी रिट्रैक्शन होगी ऐसे, तो क्या होगा, ये वाली जो आउटर मोस्ट लेयर थी वो क्या बना देगी, मैट्रिक्स ऑफ द कोलेस्टियाटोमा, और वो कंटिन्यूसली फिर अंदर क्या प्रोड्यूस करेगा, कैराटिन डेब्रिस। और क्योंकि वो एक पॉकेट है तो वो कैराटिन डेब्रिस उसमें इकट्ठा होता रहेगा, और जैसे जैसे इकट्ठा होता रहेगा कोलेस्टियाटोमा का साइज इंक्रीज होता रहेगा। तो यहाँ पे क्या होगा, रिट्रैक्शन पॉकेट डेवलप हुई, फिर जैसे जैसे कैराटिन डेवलप उसमें इकट्ठा होता गया, वो पॉकेट जो है वो इनलार्ज करती गई। ठीक है, सेकेंड है हाइपरप्लेजिया ऑफ द बेसल एपिथेलियल सेल्स। अब होता क्या है कि बेसल एपिथेलियल लाइनिंग जो है इसकी, वहाँ पे मतलब मिडल ईयर कैविटी के म्यूकोजा की जो एपिथेलियल लाइनिंग है वहाँ पे क्या होगा, जो बेसल सेल्स होते हैं, ठीक है, जो बेसमेंट मतलब बेसल मेम्ब्रेन के साथ सेल्स होते हैं। अब क्या होगा कि जब मतलब ना चिल्ड्रन होते हैं उनमें सब क्लिनिकल वायरल इन्फेक्शन जो है वो काफ़ी कॉमन होते हैं, मतलब सब क्लिनिकल इन्फेक्शन, ऐसे इन्फेक्शन जो कि साइन एंड सिम्टम्स नहीं दे रहे, मतलब हमें पता नहीं होता कि उसमें डिजीज़ है, तो सब क्लिनिकल इन्फेक्शन काफ़ी कॉमन होता है। उन सब क्लिनिकल इन्फेक्शन से बचने के लिए जो सेल्स हैं ना वहाँ पे वो काफ़ी रैपिडली प्रोलिफरेट करते हैं। तो क्या होता है कि जो बेजल सेल्स हैं यहाँ पे वो भी रैपिडली प्रोलिफरेट करते हैं। अब जब वो बेजल सेल्स जो हैं, नॉर्मली बेजल सेल प्रोलिफरेट करते हैं और फिर वो टूवर्ड्स द मतलब सुपरफिशियली आते हैं और आके डिफ्रेंशिएट होते हैं। अब यहाँ पे क्या होगा, बेजल सेल रैपिडली क्या करें, प्रोलिफरेट करें, फिर बाद में वो सुपरफिशियल लेयर में आएंगे और वहाँ पे आके क्रेटिनाइजिंग स्क्वेमस एपिथेलियम बना देंगे। ठीक है, तो उस वजह से जब यहाँ पे क्रेटिनाइजिंग स्क्वेमस एपिथेलियम होगी तो वो ये बात आ गई कि कोलेस्टियाटोमा। एंड द थर्ड पॉइंट इज द स्क्वेमस सेल मेटाप्लेजिया। अब जैसे कि मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि बच्चों में सब क्लिनिकल इन्फेक्शन जो हैं वो काफ़ी कॉमन होते हैं। ठीक है, अब जब सब क्लिनिकल इन्फेक्शन होता है तो जो म्यूकोजा है वो मतलब क्या होगा कि बार बार या कह लें कि लॉन्ग टर्म के लिए ना वो इरिटेशन होती है, मतलब लॉन्ग टर्म इरिटेशन ऑफ द म्यूकोजल लाइनिंग। और जब भी एपिथेलियम जो है वो बार बार इरिटेट उसे किया जाता है तो वो उस तरह की एपिथेलियम बन जाती है कि जो कि इरिटेटिंग एजेंट है ना उससे अच्छे से एक्यूमुलेट कर सके, मतलब उससे अडेप्ट कर सके। जैसे कि हमने एक एग्जांपल पढ़ी हुई है बैरेट एसोफेगस के, मतलब नॉर्मली एसोफेगस की लाइनिंग जो थी वो स्क्वेमस थी, लेकिन जब उसमें एसिड रिफ्लक्स बार बार होता है तो उसकी लाइनिंग वैसी हो जाती है, उस एपिथेलियम की तरह हो जाती है जो कि एसिड से ज़्यादा अच्छी तरह से अडेप्ट करती है, लाइक कोलमनर एपिथेलियम। तो इसी तरह कि जब उसको बार बार इरिटेट किया जाता है तो उसकी एपिथेलियल लाइनिंग वो नहीं रहेगी, मतलब सिलेटेड कोलमनर भी नहीं रहेगी, ना ही अगर तो वो एटिक पोर्शन में है तो फिर वो पेवमेंट लाइक नहीं रहेगी। मोस्टली ये भी एटिक पोर्शन में ही होता है। ठीक है, तो क्या होगा कि जो पेवमेंट एपिथेलियम थी ना, जो फ्लैट सेल्स से एटिक के, वो मेटाप्लेजिया करेंगे और वो क्या बना देंगे, कैरेटिनाइजिंग स्क्वेमस एपिथेलियम। तो ड्यू टू लॉन्ग टर्म इरिटेशन ऑफ द म्यूकोजा जो पेवमेंट एपिथेलियम थी वो उसने मेटाप्लेजिया किया और स्क्वेमस कैरेटिनाइजिंग एपिथेलियम बना दिया। सेकेंड इज द सेकेंडरी एक्वायर्ड कोलेस्टियाटोमा। जैसे कि आपको नाम से पता चल रहा है कि कोलेस्टियाटोमा बन रहा है सेकेंडरी टू सम डिजीज़। ठीक है, पहले कोई डिजीज़ हुई उसके रिजल्ट में कोलेस्टियाटोमा बन रहा है। इसमें क्या कॉजेज आते हैं, नाउ
first theory is the migration through the perforation of tympanic membrane. Now this is the external acoustic meatus, this is the tympanic membrane, and this is the medullary cavity. Now if there is an perforation in the tympanic membrane, for example the person has suffered from acute otitis media or acute necrotizing otitis media, there is a perforation in the tympanic membrane. Now there are squamous keratinizing epithelium in the lining of auditory meatus. These cells migrate through this perforation into the medullary cavity, and same thing if presence of keratinizing squamous epithelium in the middle ear will leads to formation of cholesteatoma. The next theory is metaplasia of middle ear mucosa. What happens that same thing कि अगर मिडल ईयर म्यूकोजा को बार बार इरिटेट किया जाए, मतलब मिडल ईयर कैविटी में बार बार मतलब रिकरेंट इन्फेक्शंस होंगे, द मिडल ईयर म्यूकोजा गेट इरिटेटेड फॉर लॉन्ग टाइम, इट लीड्स टू मेटाप्लेजिया. मतलब क्या होगा, मिडल ईयर की जो एपिथेलियल लाइनिंग है जो कि सिलिएटेड कोलमनर थी या वो क्यूबॉइडल थी, वो मेटाप्लेजिया करेगी और स्क्वेमस केराटिनाइजिंग एपिथेलियम में कन्वर्ट हो जाएगी. ठीक है, तो ये था metaplasia of the middle ear mucosa. Now the next thing is complication associated with cholesteatoma. So the most important complication associated with cholesteatoma is that the cholesteatoma has the property of destructing the bone, destruction of bone. जैसे जैसे cholesteatoma grow करता है तो वो क्या करता है, इट कॉजेज द नेक्रोसिस ऑफ द बोन्स इन द मिडल ईयर कैविटी. फॉर एग्जांपल ओसिकुलर चेन, इट कॉजेज द डिस्ट्रक्शन ऑफ द बोनी कैनाल ऑफ द फेशियल नर्व, एंड इट में आल्सो कॉजेज द डिस्ट्रक्शन ऑफ द बोनी लेब्रिंथ. अब करता कैसे, इसके पीछे मैकेनिज्म क्या है कि जैसे जैसे अब जैसे आपको मैंने बताया था, कोलेस्टेटोमा जो होता है वो एक पॉकेट की तरह का होता है जिसमें कंटिन्यूसली कैराटिन प्रोडक्शन होती है और उसका साइज बढ़ता रहता है और वह एक्सपैंड करता रहता है. अब मिडल ईयर कैविटी तो बहुत छोटी सी जगह है, तो ये एक्सपैंड करता है और डिफरेंट मैकेनिज्म्स के थ्रू ऑस्टिकुलर चेन या बोन्स की डिस्ट्रक्शन करवा सकता है. ठीक है, अब उसमें डिफरेंट थ्योरीज हैं. लाइक कोलेस्टेटोमा ग्रो किया, इसने क्या किया, इसने सराउंडिंग जो टिश्यू है उसमें क्या करवाया, इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स करवाया. ठीक है, इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स हुआ. इन्फ्लेमेशन के रिजल्ट में क्या होता है, वहाँ पे मैक्रोफेजेस, वहाँ पे मोनोसाइट्स आएंगे, मैक्रोफेजेस आएंगे, इसके अलावा ऑस्टियोक्लास्ट होंगे, ऑस्टियोक्लास्ट एक्सेट्रा. ठीक है, ये सारे सेल्स वहाँ पे आएंगे. अब ये सेल्स क्या करते हैं, दी सेल प्रोड्यूस, क्योंकि देखो जब भी इन्फ्लेमेशन होती है तो वहाँ पे जो है ये जो इन्फ्लामेटरी सेल्स हैं वो डिफरेंट टाइप के इंजाइम्स रिलीज़ करते हैं और एजेंट्स रिलीज़ करते हैं टू डिस्ट्रॉय द ऑफेंडिंग एजेंट. अब यहाँ पे इसने जो कोलेस्टेटोमा है उसने सराउंडिंग टिश्यू में इन्फ्लामेशन करवाई है जिसकी वजह से ये सेल इन्फ्लामेटरी सेल्स हैं. अब ये डिफरेंट इंजाइम्स रिलीज़ करेंगे. मोस्ट इंपॉर्टेंट इन दिस केस इज कोलेजिनेसिस, acid phosphatase and proteolytic enzymes. Acid phosphatase and proteolytic enzymes. Now these enzymes cause the necrosis and destruction of bones. ठीक है, so osteoclasts induce inflammatory response which in turn leads to infiltration of these cells which in turn produce various enzymes which causes destruction of bone. Secondly, the pressure effect on the ossicular chain and other bones present in the middle ear cleft due to presence of cholesteatoma also causes necrosis. And other theory shows that there is production of various hormones by this cholesteatoma. ठीक है, यहाँ पे कुछ सेल्स होते हैं जो हार्मोन प्रोड्यूस करते हैं और वो भी बोन डिस्ट्रक्शन में रोल प्ले करते हैं. बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरी इज द इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स इंड्यूस्ड बाय कोलेस्टेटोमा, जिसकी वजह से सेल्स आए और उन्होंने डिफरेंट एंजाइम रिलीज किए जिन्होंने बोन डिस्ट्रक्शन करवाई. ठीक है, द लास्ट थिंग इन दिस टॉपिक इज द ट्रीटमेंट. नाउ इट मे बी मेडिकल ट्रीटमेंट. मतलब क्या होगा कि मेडिकल ट्रीटमेंट, मेडिकली क्या किया जाता है कि अगर उस पेशेंट को बार बार इन्फेक्शन हो रहे हैं तो हमें इन्फेक्शन को पहले हमने डायग्नोस करना है कि वो इन्फेक्शन हैं कौन से, कल्चर ने सेंसिटिविटी की और पता लगाया कि उसको कौन से इन्फेक्शन है, तो हमने उसके लिए एंटीबायोटिक्स देनी है.
ठीक है। अगर उसकी स्टेशन ट्यूब ऑब्स्ट्रक्शन है तो उसके लिए नेजल डीकंजेस्टेंट्स देंगे लाइक एफिड्रिन देंगे, या ओरल डीकंजेस्टेंट्स देंगे लाइक स्यूडोएफिड्रिन देंगे। ठीक है, तो ताकि उसके थ्रू क्या होगा कि जो स्टेशन ट्यूब के थ्रू इरेशन है वो दोबारा से सिक्योर हो जाए और नॉर्मल हो जाए। सर्जिकली इंटरवेंशंस कब की जाती हैं? सर्जिकल इंटरवेंशन की जाती हैं टू प्रिवेंट द कॉम्प्लिकेशन एसोसिएटेड विद कोलेस्टियाटोमा, मतलब बोन नेक्रोसिस से बचाने के लिए सर्जिकल इंटरवेंशंस की जाती हैं। अब उसमें क्या है, उसमें हमारे पास आती है टिम्पैनोप्लास्टी की जाती है। टिम्पैनोप्लास्टी करते हैं। टिम्पैनोप्लास्टी क्या होता है? टिम्पैनोप्लास्टी कंप्राइजेस ऑफ मरिंगोप्लास्टी प्लस ओसिकुलोप्लास्टी, मतलब जो हमारे पास टिम्पैनिक मेम्ब्रेन में डिफेक्ट आएगा उसको ठीक करेंगे हम, जिसको हम मेनिंगोप्लास्टी कहेंगे। और जो ओसिकुलर चेन में डिफेक्ट आया, मतलब उसने उसकी इरोजन करवा दिया अगर ओसिकुलर चेन की, तो उसको हम ठीक करेंगे। ठीक है, तो ये हो गया टिम्पैनोप्लास्टी, जिसमें हमारे पास मरिंगोप्लास्टी आ गई प्लस ओसिकुलोप्लास्टी आ गया। इसके अलावा मैस्टोइडेक्टमी हम करते हैं। मैस्टोइडेक्टमी करेंगे इन केस दैट द कोलेस्टियाटोमा हैज स्प्रेड टू द मैस्टोइड एंट्रम, ऑडिटस टू मैस्टोइड एंट्रम और मैस्टोइड एंट्रम। तो सबसे मेडिकल ट्रीटमेंट हो गया और सर्जिकल ट्रीटमेंट हो गया। तो इस तरह ये हो गया हमारे पास। सबसे पहले हमने देखा कोलेस्टियाटोमा की डेफिनेशन क्या होती है, स्किन एट एबनॉर्मल प्लेस। फिर हमने इसका मिडिल ईयर क्लेफ्ट की एपिथेलियल लाइनें देखी, स्ट्रक्चर देख लिया कि ये पॉकेट होता है जिसमें कैरेटिनाइजिंग एपिथेलियम कंटिन्यूसली कैरेटिन प्रोड्यूस करती है। क्लासिफिकेशन देख ली, जिसमें क्लासिफिकेशन में आप अगर एक ग्राफ फ्लो चार्ट की फॉर्म में इसको देखें तो वो ज़्यादा बेहतर होता है कि अगर आप प्राइमरी में आए तो प्राइमरी में क्या होता है, नंबर 1 स्टेशन ट्यूब ऑब्स्ट्रक्शन होती है। उसकी वजह से क्या होता है, एयर इन द मिडिल ईयर जो है वो रिजॉर्ब हो जाती है, रिजॉर्ब। उसकी वजह से क्या होता है, नेगेटिव प्रेशर क्रिएट होता है, नेगेटिव प्रेशर इन द मिडिल ईयर, जिसकी वजह से रिट्रैक्शन होती है टिम्पैनिक मेम्ब्रेन की, स्पेशली एट द एटिक पोर्शन। और लास्ट पे उस रिट्रैक्शन पॉकेट की वजह से क्या बनता है, प्राइमरी कोलेस्टियाटोमा। ठीक है, इसके अलावा जब बार बार सब क्लिनिकल इन्फेक्शन होते हैं, सब क्लिनिकल इन्फेक्शन की वजह से दो चीज़ें आती हैं। नंबर 1 इट में लीड्स टू म्यूकोजल मेटाप्लेजिया, मतलब जो एटिक का म्यूकोजा है उसका मेटाप्लेजिया होगा, और उस वजह से म्यूकोजल मेटाप्लेजिया होगा, उस वजह से कोलेस्टियाटोमा बनेगा। एंड नंबर 2 इज़ बेजल सेल्स हाइपरप्लेजिया। ठीक है, उस बेजल सेल हाइपरप्लेजिया की वजह से वो सेल्स हैं वो डिफ्रेंशिएट करेंगे कोलेस्टियाटोमा में। अब और इसके अलावा दूसरी हमने पढ़ी थी सेकेंडरी एक्वायर्ड, ये है प्राइमरी एक्वायर्ड, और दूसरी थी सेकेंडरी एक्वायर्ड। सेकेंडरी एक्वायर्ड में हमने क्या देखा था कि नंबर 1 रिकरेंट इन्फेक्शन होते हैं। रिकरेंट इन्फेक्शन की वजह से क्या होता है, म्यूकोजल मेटाप्लेजिया होता है, मतलब मिडल ईयर म्यूकोजा जो है वो मेटाप्लेजिया करता है। ठीक है, और वो एट लास्ट लीड्स टू फॉर्मेशन ऑफ कोलेस्टियाटोमा। और दूसरी तरफ क्या होता है कि व्हेन देयर इज अ परफोरेशन इन द टिम्पैनिक मेम्ब्रेन, perforation in the tympanic membrane leads to the migration of the cells which are present, cells of the external auditory meatus, वो इसके जो सेल्स हैं जो कि कैरेटिनाइजिंग एपिथेलियल या स्क्वेमस कैरेटिनाइजिंग एपिथेलियल सेल्स हैं वो माइग्रेट करते हैं उधर से, और वो भी मिडिल ईयर में जाते हैं और कोलेस्टियाटोमा बनाते हैं। तो दिस इज द फ्लो चार्ट फॉर प्राइमरी कोलेस्टियाटोमा एंड दिस इज द फ्लो चार्ट फॉर सेकेंडरी कोलेस्टियाटोमा। तो यहाँ पे हमने वो सारी थ्योरीज एक्सप्लेन कर दी हैं। ठीक है, और यहाँ पे हमने कॉम्प्लिकेशन देखी कि मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉम्प्लिकेशन इज़ द बोनी इरोजन, और बोनी इरोजन कैसे करता है वो हमने देख लिया। और लास्ट पे ट्रीटमेंट, मेडिकल ट्रीटमेंट टू रूल आउट, सबसे पहले हमने रूल आउट करना है कॉज को, और फिर उस कॉज को ट्रीट करना है, मतलब ट्रीटमेंट ऑफ द अंडरलाइन कॉज। और सर्जिकल ट्रीटमेंट हमने कब करना है, व्हेन देयर इज, मतलब बोनी इरोजन हो रही हो, या बोनी इरोजन से बचाने के लिए हमने सर्जिकल इंटरवेंशन करनी है, जिसमें टिम्पैनोप्लास्टी मैस्टोइडेक्टमी आता है।